भी हो जाएगी. So today what we'll doing is linear operators and functionals on finite dimensional spaces, right? So for that, what we assume is in whole of this section that x and y we have are the finite dimensional vector spaces, ठीक है, over the same field, and t is a linear operator, right? And what we define is a basis for x and a basis for y. The basis for x be e is equals to e1 e2 en, and basis for y would be b is equals to b1 b2 br, right? ये e1 e2 en लिखा है does not necessarily mean ये shorter basis ही है या फिर identical basis ही है. These are any basis elements e1 e2 en, right? Now since we have a basis for x and basis for y, so for every x belonging to x, we can have a unique representation such as 1, right? X is equals to zeta 1, eta 1 plus up to so on zeta n, eta n. For every x, we will have a unique representation because x is a finite dimensional vector space and has a basis e1, e2, en, right? Now, since t is linear, right? So when we say y is equals to tx has the image, x has the image, x अगर x में है तो उसके ऊपर t अप्लाई करेंगे तो उसकी इमेज कहाँ जाएगी? y अगर जो एलिमेंट है वो y में होगा, राइट? उसकी इमेज जो है वो y में जाएगी. So therefore y belonging to y is equals to t of x, and x क्या है? समेशन जीटा के ईटा के, तो एंड टी लीनियर है तो समेशन बाहर आ जाएगा जीटा के ईटा के एंड टी ऑफ ई के रह जाएगा, राइट? सो देयरफॉर हमने क्या व्हाट वी हैव इज अगर x एक सबस्पेस x एक वेक्टर स्पेस है फाइनाइट डायमेंशनल एंड t हमारे पास एक लीनियर ऑपरेटर है, देन हमारे पास x के पास एक इमेज आएगी t ऑफ x जिसको हम डिनोट कर सकते हैं y से, which would be nothing but zeta k t of eta k. Now this representation would be unique क्योंकि x की जो representation थी summation zeta I eta I वो unique थी, and t of हमने सिर्फ element लिया है and t जो है वो linear operator है, so representation this is unique. So therefore what we have is we have a statement or a result, we can say that t is uniquely determined if the images yk of n basis vectors are prescribed, right? So हमें हर एक x के लिए एक यूनिक y मिल जाएगा अगर हमारे पास ये हर एक ek के लिए ये t of ek यूनिकली हमारे पास डिफाइन है, राइट? अगर हमें ये हर एक एलिमेंट की इमेज दी हुई है t of ek दिया हुआ है हमारे पास हर एक ek के लिए, तो we have y, right? And this y would be unique. So t is uniquely determined if the images are images of the basis vectors even e2 en and prescribed, ठीक है? Now next what we do is since देखो ये x का हमने बेसिस लिया था, x के बेसिस से हम इक्वेशन 2 पे पहुंचे थे, राइट? नाउ अब y का ऑलरेडी एक बेसिस है b1 b2 br, राइट? सो दैट मीन्स y का कोई भी एलिमेंट होगा उसको हम b1 b2 br की फॉर्म में भी लिख सकते हैं, राइट? So since y belongs to y can be written as summation eta j beta j, correct? And yk is equals to t of ek, ये भी y में belong करता है, so इनकी भी एक unique representation होगी. So therefore we say tek is equals to summation tau jk beta j, right? j is variable, k is fixed. So हर एक ek के लिए हमारे पास एक tek मिल जाएगा जिसकी रिप्रेजेंटेशन होगी 3 डैश, एंड y since tx is equals to y है, y क्या है? x की इमेज, एंड y भी यूनिकली रिप्रेजेंट किया जा सकता है, राइट? सो इनसे हमारे पास क्या आया? इक्वेशन 2 में क्या था? y is equals to summation zeta k t of ek. तो यहाँ पे अगर हम t of ek की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दे फ्रॉम इक्वेशन 3 डैश इस इक्वेशन से, देन हमारे पास क्या आएगा? y is equals to, ये तो इक्वेशन 3 से गिवन है, समेशन eta j beta j, right? And this is equals to nothing but summation zeta k t of ek, ये इक्वेशन 2 से है, right?
नाउ इस इक्वेशन 2 में जब हमने t ऑफ e k की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी, t ऑफ e k की वैल्यू क्या है, समेशन j इज इक्वल्स टू 1 to r t of j k bj, right? So therefore we have this is equals to summation बाहर आ जाएगा, this is equals to summation j is equals to 1 to r and summation of this zeta k tau j के combine हो जाएंगे and bj as it is रह जाएगा. इससे हमारे पास आया क्या, ये bj's जो है वो लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट थे, राइट, बिकॉज एलिमेंट्स ऑफ बेसिस है, राइट. तो देयरफॉर राइट में जो एलिमेंट है, यहाँ पे हमारे पास दो एलिमेंट्स आए, एक ये आया समेशन ईटा जे बीजे, दिस इज इक्वल्स टू समेशन जे के ऊपर समथिंग इनटू बीटा जे, राइट. एंड बीटा जे जो थे, जो वो लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट थे, सो इनका जो रिप्रेजेंटेशन है वो ये कोफिशिएंट्स यूनिक होने चाहिए. ये कोफिशिएंट्स यूनिक होने का मतलब क्या है, ये ईटा जे शुड बी इक्वल्स टू दिस समेशन वाली टर्म, राइट. सो इक्वेशन 4 होल्ड करनी चाहिए. क्यों, क्योंकि बीजेस जो थे वो लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट थे, राइट. सो उनके कोफिशिएंट्स जो हैं, बीजे लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट फॉर्म कर रहा था बी बेसिस का, एंड सो उनके कोफिशिएंट्स जो है वो इक्वल होंगे. कोफिशिएंट्स इक्वल करके क्या आया, ईटा जे इज इक्वल्स टू समेशन के इज इक्वल्स टू 1 to n टाउ जे के जीटा के. सो इसका मतलब ये जीटा के क्या थे, एक्स के रिप्रेजेंटेशन के एलिमेंट्स, टाउ जे के क्या थे, टी ऑफ ई के एलिमेंट्स, राइट. तो अगर हमारे पास एक्स की रिप्रेजेंटेशन है एंड टी ऑफ ई की वैल्यू है, तो हम ईटा जे को निकाल सकते हैं, दैट इज y को निकाल सकते हैं, और इसके कोफिशिएंट्स जो है वो इस तरीके से लिखे जाएंगे, right. So this implies that the image y is equals to tx. Y was summation eta j bj of x. X was summation zeta k e k can be obtained from equation 4. क्योंकि हमें इमेज ऑब्टेन करने के लिए फाइनली चाहिए क्या, eta j चाहिए, एंड eta j की इक्वेशन वैल्यू जो है हमने इक्वेशन 4 से डिराइव कर ली, राइट. सो देयरफॉर हमने यहाँ पे प्रूव क्या किया है कि अगर हमारे पास दो फाइनाइट डायमेंशन के वेक्टर स्पेसेस गिवन है, सो उनके लिए हर एक एलिमेंट x के लिए हमारे पास एक इमेज tx मिल रही है. उस tx की जो इमेज है जिसको हम y से डिनोट कर रहे हैं, उसको हम ऑब्टेन कर सकते हैं फ्रॉम द वैल्यू ऑफ x एंड द वैल्यू ऑफ t एट बेसिस पॉइंट्स, राइट, t ऑफ ek और ek की वैल्यूज. तो इक्वेशन 4 से हम वैल्यूज को डिराइव कर सकते हैं. Any doubts till this? Excuse me, ma'am. हाँ जी. Ma'am, the mic is getting brushed against something. It seems like there's some disturbance from your mic constantly. Yes, ma'am. पीछे से disturbance आ रही है बहुत. Now, if you can keep it a little farther from you. Just switch off the fan. Tell me if it is clear now or it's still echoing. Yes, ma'am. It is clear now, ma'am. Okay, so it must be fine. So, okay. Any doubt till now, or do I repeat it? So I hope that this is clear, that if x and y are finite dimensional vector spaces, then for x belonging to x, we can find the value of tx, which is y, and this value is given by equation 4, right. Next what we are doing is, that was for an operator, right. Next what we have is the result for functionals. So let x be a finite dimensional vector space where dimension of x is equals to n and even e to en is the basis for x. Then the linear functionals on x constitute the algebraic dual space, right. ये तो हमने प्रूफ देखा ही था कि algebraic dual space क्या होता है, set of all linear functionals, right, on x.
नाउ इसका मतलब क्या है कि हर एक फंक्शनल एफ के लिए, फॉर ईच सच फंक्शनल एफ जो कि अलजेब्राइक डुअल स्पेस में बिलोंग कर रहा है, उनके लिए एंड एवरी एक्स बिलोंगिंग्स टू एक्स, एक्स एक हमारे पास फाइनाइट डायमेंशन का वेक्टर स्पेस है जिसकी डायमेंशन हमारे पास n गिवन है, राइट, तो उसकी यूनिक रिप्रेजेंटेशन है। एंड f जो है लीनियर फंक्शनल है, तो f ऑफ x को कैसे लिख सकते हैं, f ऑफ समेशन जीटा जे ई जे, एंड f लीनियर है तो समेशन बाहर आ जाएगा, so this is nothing but जीटा जे f of ej, right? अगर f of ej को हम अल्फा j से डिनोट करते हैं, so we have f can be uniquely determined by the basis vectors, right? Is it clear? Or my voice is still echoing? It's clear, ma'am. Okay. Now, till now what we have done is we had a element of an x set and we applied a functional or operator to that and find out कि इसकी image क्या होगी and उसको किस तरीके से हम find out कर सकते हैं, right? Using the basis vectors. Next we have is if we are given n tuple of scalars, right? We have given alpha n, alpha 2 up to alpha n scalars and which determine a linear functional of x by 5. 5 इक्वेशन में हमारे पास क्या था, f of x की वैल्यू फाइनली निकल के क्या आई थी, समेशन जीटा जे अल्फा जे, राइट, एंड यहाँ पे जीटा जे जो थे वो x के कोफिशिएंट्स थे एंड अल्फा जे जो है f of e j थे, राइट। तो अगर हमारे पास ये अल्फा एन अल्फा टू अल्फा एन जो है, अगर हमारे पास इस टाइप का बेसिस है जो स्टैंडर्ड बेसिस होता है, राइट, E1 E2 En वाला 1 0 0 1 अप टू सो ऑन, अगर अल्फा एन इस टाइप के हैं तो ये फंक्शनल है, इनको हम किस टाइप से डिनोट कर सकते हैं, then these functionals which we denote by f1 to fn will values fk of ej is equals to delta jk। ये कैसे आया देखो, if k is equals to j हो जाता है then ये क्या हो जाएगा, fj ej that would be equals to delta jj is equals to 1। ये कैसे आया, यहाँ पे f of ej डालो, राइट, f of जैसे e1 डालते हैं, f of e1 would be nothing but समेशन जीटा जे एंड अल्फा जे। अब अल्फा जे यहाँ पे सिर्फ 1 रह जाएगा, बाकी तो 0 हो जाएंगे। सो एफ ऑफ, लेट मी जस्ट राइट इट नाउ, एफ ऑफ अगर हम E1 निकाल रहे हैं, सो दिस इज नथिंग बट जीटा 1 इंटू 1, सो दिस इज ओनली जीटा 1, राइट। सिमिलरली अगर हम एफ ऑफ E2 निकालेंगे तो उसका क्या आएगा, एफ ऑफ E2 क्या आएगा, एफ ऑफ E2 इज इक्वल्स टू जीटा 2 इंटू 1, तो वो भी जीटा 2 आ जाएगा। तो सिमिलरली जब हम ऐसे ही करते जाएंगे तो एफ ऑफ En क्या आएगा, जीटा n, राइट, इक्वेशन 5 से। तो देयरफॉर क्या आया हमारे पास कि अगर हमारे पास ये ऐसे हम n फंक्शनल्स लेते हैं f1 to fn, सो दिस fk ek इज इक्वल्स टू डेल्टा jk। हर एक f ऑफ ek के लिए, जैसे f ऑफ E1 ले रहे थे तो सिर्फ जीटा 1 आ रहा था, f ऑफ E2 के लिए सिर्फ जीटा 2 आ रहा था, मतलब जो e i एलिमेंट लिया है उसी के करस्पॉन्डिंग कोफिशिएंट आएगा जीटा i, राइट। सो देयरफॉर अगर f ऑफ ej ले रहे हैं, अगर k इज इक्वल्स टू j है, अगर सेम कोफिशिएंट है तब तो 1 आ जाएगा, अगर सेम कोफिशिएंट नहीं है तब सारे एलिमेंट्स की वैल्यू, तब इसकी वैल्यू क्या आएगी, 0, राइट। तो ये फंक्शनल क्लियर हुआ जो हमने डिफाइन किया अभी, एफ के ई के, एफ के ई जे, यस मैम। ठीक है। सो इसका मतलब क्या हुआ कि हर सिर्फ एक वैल्यू 1 जो आएगी वो kth बेसिस वेक्टर पे आएगी एंड बाकी n-1 वेक्टर्स के लिए वैल्यू क्या है, 0। तो इस डेल्टा जे के फंक्शन जो है, ये डेल्टा जे के फंक्शन, इसको बोलते हैं हम क्रोनेकर डेल्टा, राइट। क्रोनेकर डेल्टा की डेफिनेशन क्या होती है, this would be 0 if j is not equals to k and this would be 1 if j is equals to k, right। तो अगर हम इस तरीके से, हमारे पास ये फंक्शनल आ गए, अगर हम ये फंक्शनल्स कब आए थे, जब ये ej एलिमेंट्स जो हैं ये हमने ये श्रोडिंगर बेसिस वाले लिए थे, राइट।
स्टैंडर्ड बेसिस होता है, लेट अस सी दैट। सो हमारे पास क्या आया कि F1 F2 Fn, ये जितने फंक्शनल्स आएंगे n, ये जो एलिमेंट्स इस सेट को बोलेंगे डुअल बेसिस ऑफ E1 E2 En फॉर x, राइट। तो हमने यहाँ पे क्या किया है, हमारे पास एक सेट था x, राइट, उसका हमारे पास बेसिस सेट था E1 E2 En, राइट। उससे हमने क्या लिया, लीनियर फंक्शनल्स का जो सेट होता है, दैट इज डुअल स्पेस होता है ना लीनियर फंक्शनल्स का सेट, उस डुअल स्पेस का हमने बेसिस निकाला है कि उसका बेसिस क्या होगा, राइट। तो उसका बेसिस होगा ये सारे F1 to Fn, जिनकी डेफिनेशन इज गिवन, राइट दिस Fk of Ej is equals to delta Jk, राइट। तो हमारे पास क्या आ गया, हर एक स्पेस x के लिए हम उसका डुअल स्पेस डिफाइन कर सकते हैं x स्टार, जो कि होगा उसके लीनियर फंक्शनल्स का सेट। एंड जैसे ही हमने x स्टार डिफाइन किया तो हम उसका बेसिस सेट डिफाइन कर सकते हैं, जिसको हम बोलते हैं डुअल बेसिस। एंड वो कौन सा होगा, F1 F2 Fn का सेट, वेयर ईच Fi की जो डेफिनेशन है दिस इज ये Fk Ej वाली डेफिनेशन। इज दिस क्लियर? Yes, ma'am. Next is we have a theorem, and the theorem says if x is an n-dimensional vector space and E is equals to E1 E2 En is a basis for x, then the set F, which is F1 F2 Fn given by Fi of Ej is equals to delta Ij, is a basis for algebraic dual and dimension of x star is equals to dimension of F। तो हमने अभी जो यहाँ पे स्टेटमेंट दी है कि ये इसका डुअल बेसिस होगा, इसको प्रूव भी करना होगा, वी कांट जस्ट से कि ये डुअल बेसिस होगा, राइट। तो इसको प्रूव करते हैं, किस तरीके से करते हैं। नाउ फर्स्ट वी हैव टू यूज, फर्स्ट प्रूव क्या करना है हमें कि ये जो सेट F है ये बेसिस सेट है x स्टार का, राइट। तो x स्टार का बेसिस सेट प्रूव करने का मतलब क्या है, हमें क्या प्रूव करना है कि लीनियरली इंडिपेंडेंट है और स्पैन कर रहा है x स्टार को, राइट। तो उसके लिए पहले जस्ट Li सेट देखते हैं। तो Li देखने के लिए क्या करेंगे, कोफिशिएंट्स का सम लीनियर कॉम्बिनेशन लेंगे इनका, b1 f1 b2 f2 up to so on beta and fn is equals to 0 where beta is our scalars, right। so अब ये फंक्शनल की ये जो पूरा फंक्शनल f1 एक फंक्शनल था, f2 एक फंक्शनल था, तो इनका लीनियर कॉम्बिनेशन भी एक फंक्शनल है, राइट। so therefore ये जो फंक्शनल है दिस इज इक्वल्स टू 0, एंड फंक्शनल के 0 होने का मतलब क्या है, हर एक x पे उसकी वैल्यू 0 होगी, right। so therefore applying x we have this beta 1 f1 up to so on beta and fn की value at x is equals to 0 for all x, right। अब fn's जो है वो लीनियर थे, तो इनको डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं ओवर समेशन। so we have beta 1 f1x plus up to beta 2 f2x up to so on beta and fnx is equals to 0 for all x। now यहाँ पे इसमें करने का हमारे पास बेनिफिट क्या आया, the benefit is अगर हम x को E1 कंसीडर करते हैं, राइट। अब ये E1 क्या है हमारे पास, स्टैंडर्ड बेसिस वाला एलिमेंट E1 लिया है हमने, राइट। सो x को अगर हम E1 कंसीडर करते हैं, इस इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करते हैं, तो क्या आएगा, बीटा 1 f1 ऑफ E1 प्लस बीटा 2 f2 ऑफ E1 प्लस अप टू सो ऑन बीटा एन fn ऑफ E1 इज इक्वल्स टू 0, राइट। हर एक x के लिए था तो E1 के लिए भी होल्ड करना चाहिए। तो इससे क्या आएगा, f1 ऑफ E1 क्या आएगा, क्रोनेकर डेल्टा से j इज इक्वल्स टू k है तो 1, राइट। नाउ Yes, ma'am. f2 ऑफ E1 क्या आएगा, 0। सिमिलरली अप टू सो ऑन fn ऑफ E1 क्या आएगा, 0, क्रोनेकर डेल्टा डेफिनेशन, राइट। तो इससे हमारे पास क्या आया, बीटा 1 इज इक्वल्स टू 0। सिमिलरली जब हम x को E1 लिया हमने तो बीटा 1 0 आ गया, x को जब हम E2 लेंगे तो बीटा 2 0 आ जाएगा। सिमिलरली जब हम सारे एलिमेंट्स ऐसे ही लेंगे E1 to En, हमारे पास क्या आ जाएगा, ये सारे कोफिशिएंट्स क्या आ रहे हैं, 0, बीटा 1 0 बीटा 2 0 बीटा n 0। दैट इम्प्लाइज ये जो सेट है वो लीनियरली इंडिपेंडेंट है x स्टार में। इज दिस क्लियर? Yes, ma'am. नेक्स्ट व्हाट वी हैव टू प्रूव इज कि ये स्पैन भी कर रहा है, एंड स्पैन करने के लिए हम क्या ले रहे हैं, हमने एक आर्बिट्री एलिमेंट लिया, f बिलोंगिंग्स टू x स्टार भी आर्बिट्री,
राइट. देन एफ ऑफ एक्स को क्या लिख सकते हैं, एक्स वॉज समेशन जीटा आई ई आई, राइट, क्योंकि एक्स की यूनिक रिप्रेजेंटेशन मिल जाएगी. एक्स जो है कैपिटल एक्स फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस था एंड ई आई जो है उसके बेसिस एलिमेंट्स हैं. तो एक्स की यूनिक रिप्रेजेंटेशन मिली. तो एफ ऑफ एक्स को क्या लिख दिया हमने, एफ ऑफ समेशन जीटा आई ई आई. एफ जो है अब एक्स स्टार में है, एक्स स्टार में होने का मतलब क्या है, लीनियर फंक्शनल है. लीनियर है तो समेशन बाहर आ जाएगा. दैट इंप्लाइज दिस इज इक्वल्स टू समेशन जीटा आई एफ ऑफ ई आई. करेक्ट. तो क्या आया, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू समेशन जीटा जे अल्फा जे, वेयर अल्फा जे क्या है, एफ ऑफ ई आई. करेक्ट. वेयर अल्फा जे इज इक्वल्स टू एफ ऑफ ई जे फॉर ऑल जे. राइट. अब इसका मतलब नेक्स्ट क्या डिफाइन करते हैं, एफ जे ऑफ एक्स अगर निकाल रहे हैं, राइट, एफ जे ऑफ एक्स क्या होगा, दिस वुड बी एफ जे ऑफ एक्स की जगह पे फिर से समेशन जीटा आई ईटा आई रखेंगे, राइट. एंड जैसे जब z j इज इक्वल्स टू i होगा, सिर्फ उस केस में 1 आएगा, बाकी सब केसेस में 0 आएगा. तो ये कोफिशिएंट्स, इसकी जो वैल्यू है एफ जे ऑफ एक्स, उसकी वैल्यू क्या आएगी, जीटा जे. दैट इज इक्वेशन 2. इक्वेशन 2 क्लियर है. फंक्शनल की डेफिनेशन क्या थी, एफ जे की क्रोनिकल डेल्टा डेफिनेशन है ना. एंड क्रोनिकल डेल्टा डेफिनेशन में हमने क्या लिखा था कि जैसे ही j इज इक्वल्स टू i होगा तब 1 हो जाएगा, बाकी केसेस में 0, राइट. तो जब j इज इक्वल्स टू यहाँ पे i होगा, i क्या है यहाँ पे 1 to n, तो जैसे i इज इक्वल्स टू j होगा उस केस में वैल्यू आ जाएगी कोफिशिएंट की एज इट इज, एंड बाकी केसेस में 0. so this is equals to zeta j, right. so what we have is from 1 and 2 एक इक्वेशन हमारे पास आई एफ जे इज इक्वल्स टू समेशन जीटा जे अल्फा जे, एंड एक आई हमारे पास एफ जे इज इक्वल्स टू जीटा जे. तो इक्वेशन 2 से हम जीटा जे की वैल्यू जो है इक्वेशन 1 में सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं. तो एफ ऑफ एक्स क्या आएगा, समेशन एज इट इज, जीटा जे की वैल्यू एफ जे ऑफ एक्स एंड अल्फा जे एज इट इज, राइट. तो इसका मतलब क्या है, हर एक एक्स जो एक्स में था उसके लिए हमने डिफाइन किया एक फंक्शनल एफ. एफ आर्बिट्री फंक्शन लिया था हमने एक्स स्टार में, राइट. तो एफ ऑफ एक्स किस फॉर्म का आ गया, समेशन अल्फा जे इनटू एफ जे ऑफ एक्स, राइट. स्पैनिंग सेट बन गया. इसका मतलब एफ जे एक्स जो एफ सेट एफ आई वो स्पैनिंग सेट बन गया. हर एक एफ आर्बिट्री एफ को हम इसकी लीनियर कॉम्बिनेशन की फॉर्म में लिख सकते हैं. Therefore, the unique representation of arbitrary linear functional in terms of functionals is, तो कोई भी अगर हमारे पास f फंक्शनल है आर्बिट्री x स्टार में लीनियर फंक्शनल है, तो उसको हम किस टाइप से लिख सकते हैं, यूनिक रिप्रेजेंटेशन वुड बी alpha 1 f1 plus up to so on alpha n fn, right. so therefore this is a basis and dimensions are equal, क्योंकि यहाँ पे पूरे n तक जा रहा है, n से ना ज्यादा है ना कम है. Is this theorem clear? Yes, ma'am. Yes. Next is a zero vector theorem, and which says that if x is a finite dimensional vector space, right, and if x naught belonging to x has the property that f of x naught is equals to 0 for all functionals, then x naught is equals to 0. ये क्या कहता है, अगर फंक्शनल फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस है और एक एलिमेंट हमारे पास ऐसा मिल जाता है पूरे स्पेस में जिसपे कोई भी फंक्शनल लगा दो उस स्पेस के ऊपर, राइट. कोई भी फंक्शन ले लो एक्स स्टार का लीनियर फंक्शनल, उसकी वैल्यू वो 0 ही देगा. तो ऐसा सिर्फ एक ही वेक्टर होगा एंड वो 0 वेक्टर होगा, राइट. और कोई वेक्टर ऐसा नहीं है जो कि वैल्यू 0 गिव करे हर एक फंक्शनल के लिए, राइट. To prove this, what we have is, हमारे पास उसमें क्या क्या है, हाइपोथेसिस में x इज अ फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस. फाइनाइट डायमेंशन का वेक्टर स्पेस है तो हमने मान लिया कि इसकी डायमेंशन n है एंड इवन en इसका एक बेसिस है, राइट. नेक्स्ट क्या था हमारे पास हाइपोथेसिस में कि x नॉट जो है एक एलिमेंट है x का. अगर x नॉट एलिमेंट है x का तो उसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं, समेशन जीटा आई ई आई के फॉर्म में, and this x naught is uniquely determined and these zeta ones are scalars, right. Next hypothesis में क्या था
कि अगर x नॉट हमने एलिमेंट लिया है x का, तो f ऑफ x नॉट 0 होगा फॉर हर f, राइट? सो f ऑफ x नॉट को 0 सब्स्टिट्यूट करेंगे, दैट मीन्स f of zeta 1 e1 plus up to so on f of zeta n equals to 0, right, for all functionals. and f जो है that is linear functional क्योंकि x स्टार में बिलोंग कर रहा है, right? so therefore ये जो zeta is है ये डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा f सबके पूरे एडिशन के ऊपर, so this would be nothing but zeta I f of ei plus zeta n f of en, right? f of ei क्या है? alpha 1. अगर हम डिनोट कर रहे हैं अल्फा j इज इक्वल्स टू f of ej, then this f of ei is written as zeta 1 alpha 1 plus up to so on zeta 1 alpha n is equals to 0, right? Now this implies that this relation holds. The relation zeta 1 alpha 1 plus up to so on zeta n alpha n is equals to this 0. This relation holds for every choice of alpha 1 alpha 2 n, right? क्योंकि f जो है ये हमारे पास कोई भी फंक्शन हर एक फंक्शनल के लिए होल्ड कर रही है ना इक्वेशन, सो दैट मीन्स ये अल्फा की वैल्यूज कुछ भी हो, f ऑफ ej की वैल्यू कोई भी अल्फा आइज आए, ये हर एक अल्फा आइज के लिए होल्ड करेंगी, एंड हर एक अल्फा आइज के लिए 0 होने का मतलब क्या है कि कोफिशिएंट सारे के सारे 0 होने चाहिए, राइट? therefore zeta I is equals to 0, and जैसे ही zeta I 0 हो गया इसका मतलब क्या हुआ, x नॉट की रिप्रेजेंटेशन में क्या था, zeta 1 e1 plus up to so on zeta n en, and हर एक zeta I 0 हो गया तो x नॉट भी 0 होना चाहिए. So this theorem says that if x is a finite dimensional vector space and उसका हमें एक एलिमेंट मिल जाता है जो कि हर एक फंक्शनल पे 0 वैल्यू दे रहा है, then the element should be 0. 0 वेक्टर के अलावा कोई वेक्टर ऐसा नहीं होगा जो हर एक फंक्शनल की वैल्यू 0 देगा, राइट? 0 उस एक पॉइंट पे. नेक्स्ट इज मैम. हाँ मैम ये हम xi अल्फा i इक्वल्स टू 0 था जो समेशन, हाँ उससे xi इक्वल्स टू 0 फॉर ऑल i कैसे बोल रही हैं? अच्छा देखो, ये जो xi अल्फा i वाला समेशन था ये हर एक अल्फा i के लिए होल्ड कर रहा था ना, यस बिकॉज हर मैम. एक f के लिए होल्ड कर रहा है, तो ऐसा कोई लीनियर कॉम्बिनेशन जो कि हर एक के लिए को होल्ड कर रहा हो, 0 यूनिक रिप्रेजेंटेशन 0 की दे रहा हो, राइट? कोई भी अल्फा i स्केलर्स ले लेंगे, यहाँ पे अल्फा i जो है f ऑफ ej होगा, एंड f जो है फंक्शनल है तो उसकी जो रेंज होगी वो रियल होगा, राइट? होगी. तो दैट मीन्स हर एक स्केलर के लिए हमारे पास एक रिप्रेजेंटेशन आ रही है, जीटा 0 की रिप्रेजेंटेशन आ रही है, राइट? 0 की रिप्रेजेंटेशन क्या आ रही है, जीटा i अल्फा i. यहाँ पे अल्फा i कुछ भी हो सकते हैं, तो 0 की क्या रिप्रेजेंटेशन होती है यूनिक इन केसेस में, जब अल्फा i आर्बिट्री है यहाँ पे, so that means zeta i को 0 होना पड़ेगा ना for the unique representation of 0, ओके मैम. right? So if you want to say something like we have like zeta 1 plus 2 मैम zeta हमारे पास अल्फा आइज भी तो 0 हो सकते हैं, और मान लो ऐसे हो गया कि अल्फा आइज एक दूसरे को कैंसिल करते हुए नेगेटिव हो गए, मतलब कोई एक जैसे अल्फा मैम. 1 पॉजिटिव है अल्फा 2 नेगेटिव है, तो सेम उसको कैंसिल करते हुए. यस मैम. अच्छा ठीक है, वो मान लिया चलो होल्ड कर रहा है इस केस में. फर्स्ट थिंग इज कि ये सारे के सारे जो अल्फा जेज हैं वो 0 नहीं है, क्योंकि f ऑफ ej की वैल्यू दे रहा है, बेसिस एलिमेंट का सबका एलिमेंट सबका इमेज 0 नहीं हो सकता, राइट? क्योंकि अगर वो होता तो रेंज स्पेस ही 0 होता ना, राइट? यस मैम. ठीक है, तो अल्फा आइज तो सारे 0 है नहीं. नेक्स्ट थिंग हमने पूछी है कि ये एक दूसरे को कैंसिल भी तो कर सकते हैं, तो कैंसिल होने का इफेक्ट कब आता, जब हम आता कि ये सारे जीटाइज जो है वो कोफिशिएंट्स अगर 1 होते, एंड देन अगर अल्फा 1 अल्फा 2 के इक्वल माइनस अल्फा 2 के इक्वल होता है एंड सो ऑन, तो वो एक दूसरे को कैंसिल कर जाते, राइट? बट यहाँ पे क्या कह रहा है कि हर एक चॉइस ऑफ अल्फा के लिए, दैट मीन्स अगर मैं ये लिखती हूँ, यहाँ पे मैं जीटा को z से डिनोट कर रही हूँ, ओके? सो इफ आई एम सेइंग कि z1 plus 2 z2
माइनस 3z3 इज इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पे अल्फाइज क्या है हमारे पास 1 2 एंड -3। सेकेंड इक्वेशन में लिख रही हूँ 2z1 माइनस 4z2 प्लस 3z3 इज इक्वल्स टू 0। ये भी होल्ड कर रही है। ऐसे ही बहुत सारी ऐसी इक्वेशंस हैं जो होल्ड कर रही हैं। ये किसी किसी केस में जीरो अल्फा इज जो है वो किसी के लिए जीरो भी हो सकता है, राइट, एक केस के लिए या दो केस के लिए, नॉट ऑल जीरो। ठीक है, तो ये सारी इक्वेशंस होल्ड कर रही हैं एवरी चॉइस ऑफ अल्फा के लिए। एंड अल्फा की हमारे पास कितनी चॉइसेस हैं? हर एक अल्फा रियल लाइन पे बिलोंग कर रहा है एंड आर्बिट्री है, तो हर एक रियल लाइन का एलिमेंट जो है, राइट, सो ये जितनी इक्वेशंस हैं वो सारी होल्ड कर रही हैं। तो वो सारी होल्ड करने का मतलब क्या है कि ये सिर्फ तभी हो सकता है जब हर एक कोफिशिएंट 0 हो, क्योंकि वरना ऐसा कोई ना कोई हमारे पास आ जाएगा कि जिस अल्फा के लिए ये 0 ना हो, राइट। ओके मैम। Next is we have a theorem. I guess it's the last theorem of this section. Yeah. So next is the theorem, algebraic reflexive theorem. A finite dimensional vector space is algebraically reflexive. तो यहाँ पे हमें क्या प्रूव करना है कि अगर एक फाइनाइट डायमेंशन का वेक्टर स्पेस है तो वो हमेशा अल्जेब्राइकली रिफ्लेक्सिव होगा। एंड अल्जेब्राइकली रिफ्लेक्सिव स्पेस कौन सा था? जब सी मैपिंग हमने डिफाइन की थी, कैनोनिकल मैपिंग, अगर वो ऑन टू हो जाती है तो स्पेस को हम अल्जेब्राइकली रिफ्लेक्सिव बोलते हैं, राइट। तो देयरफॉर ये कह रहा है कि फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस है तो वो जो मैपिंग है हर एक उस केस में ऑन टू मैपिंग होगी। So let us see how it is holds. Now, x क्या है? Let x be a finite dimensional vector space. ठीक है, and हमने canonical mapping की बात करनी है तो we have to define the canonical mapping also, right? So we define the mapping C from x to x double star such that x goes to gx. इसका मतलब क्या है? That is C of x is equals to gx and where gx of f क्या था? F of x for all f belonging to x star. यही definition थी canonical mapping की, right? सो हमें क्या प्रूव करना है कि ये मैपिंग जो है ऑन टू होगी सिर्फ, क्योंकि लीनियर और 1 1 तो हम इसको प्रूव कर चुके हैं ऑलरेडी कि कैनोनिकल मैपिंग लीनियर होती है एंड 1 1 होती है। हमें सिर्फ प्रूव करना है ऑन टू होगी एंड उस केस में क्या यूज होगा? फाइनाइट डायमेंशनलनेस। तो सी नाउ सिंस so to show C is on to, we already know C is 1 1, that is injective, right? Therefore इसका इनवर्स एग्जिस्ट करेगा एंड इसका इनवर्स कहां से कहां एग्जिस्ट करेगा? RC, रेंज से x में बिलोंग करेगा, राइट, वेयर RC इज द रेंज ऑफ C। क्योंकि हमने प्रूव किया था कि कोई ऑपरेटर है या फंक्शनल है तो उसका इनवर्स कब एग्जिस्ट करता है? सिर्फ अगर वो इंजेक्टिव मैपिंग होती है। तो इसका इनवर्स मैप कर रहा है, एग्जिस्ट C इनवर्स फ्रॉम RC टू x वेयर R इज द रेंज ऑफ C, राइट। नाउ डायमेंशन ऑफ RC क्या है? डायमेंशन ऑफ x। ये कैसे हमारे पास आया? फाइनाइट डायमेंशनल का वेक्टर स्पेस है, इसके ऊपर हमने कैनोनिकल मैपिंग डिफाइन की है, तो हमें डायमेंशन ऑफ x क्या है? मान लो हमारे पास n है, इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है, सो दैट इंप्लाइज डायमेंशन ऑफ RC रेंज ऑफ C जो है वो डायमेंशन ऑफ x की इक्वल होनी चाहिए। ये कहां से आया? बोलो, समझ आया ये? मैम क्योंकि फाइनाइट डायमेंशनल स्पेस होता है तो उसमें कोई भी मैपिंग 1 1 होती है फिर ओनली इफ इट इज ऑन टू। चलो ठीक है, समझ आया। नाउ डायमेंशन ऑफ x इज इक्वल्स टू डायमेंशन ऑफ x स्टार, ये हम ऑलरेडी प्रूव कर चुके हैं। कहाँ पे? लास्ट थ्योरम जो थी शायद, जीरो वेक्टर से ऊपर वाली, यहाँ पे प्रूव किया था डायमेंशन ऑफ x स्टार कि x अगर n डायमेंशनल का वेक्टर स्पेस है तो f जो है वो उसका बेसिस वेक्टर होगा एंड डायमेंशन ऑफ x स्टार वुड बी इक्वल्स टू डायमेंशन ऑफ x, राइट। तो उसके लिए हमें क्या चाहिए था? सिर्फ कि n डायमेंशनल का वेक्टर स्पेस है, राइट। तो यहाँ पे हमने उससे डिराइव किया क्या कि डायमेंशन ऑफ x वुड बी इक्वल्स टू डायमेंशन ऑफ x स्टार, क्योंकि x जो है फाइनाइट डायमेंशन है। नाउ सेम थ्योरम अगर हम x स्टार के ऊपर अप्लाई करेंगे तो उससे क्या आएगा? डायमेंशन ऑफ x स्टार इज इक्वल्स टू डायमेंशन ऑफ x डबल स्टार, राइट।
तो यहाँ से हमारे पास क्या है, डायमेंशन ऑफ RC इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ X डबल स्टार, राइट, एंड दैट इज व्हाट वी नीडेड ऑन टू प्रूव करने के लिए, डायमेंशन ऑफ RC इज इक्वल टू X डबल स्टार, कोडोमेन एंड रेंज सेम हो गई, राइट. So we have proved this, hence RC is equals to X double star. इसका मतलब क्या है, and because RC is a subspace of X star double star, this is bijective and linear and hence it is algebraically reflexive. यहाँ से डायमेंशन इक्वल हो गई थी, डायमेंशन इक्वल्स होने से RC is equals to X star हो गया, एंड रेंज जो है हम ऑलरेडी प्रूव कर चुके कैनोनिकल मैपिंग की, कि जो है सबस्पेस होती है रेंज ऑफ एन ऑपरेटर या फंक्शनल, तो अगर फाइनाइट डायमेंशनल है, तो देयरफॉर RC एक सबस्पेस हो गया, मतलब अपने आप में एक वेक्टर स्पेस हो गया, एंड देयरफॉर इट इज equals to X double star, and the C is a bijective and linear mapping, and therefore this X space is algebraically reflexive. Any doubt in this? मैम हाँ, हमने ये जो सारा किया है इसके बजाय हम ऐसे भी तो कर सकते हैं ना डायरेक्ट, क्योंकि हमारे पास एक्स फाइनाइट डायमेंशनल था हाँ, और इंजेक्टिव भी था, तो कोई भी मैपिंग इंजेक्टिव होगी फिर ओनली इफ इट इज ऑन टू, तो वहां से सीधा सी ऑन टू हो जाता. वो होता है जब स्पेस जो है सेम होता है, ये स्पेस, ये जो C मैपिंग जा रही है X से X पे नहीं जा रही, ये X से X डबल स्टार पे जा रही है, राइट. तो इसीलिए हमने पहले यहाँ पे डायमेंशन ऑफ R इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ X स्टार किया, ये उस वाले से आया, राइट, क्योंकि यहाँ पे ये स्पेस चेंज हो जाए. अब ये जैसे ही स्पेस चेंज हो रहा है तो हमारे पास वो रिजल्ट होल्ड नहीं करेगा ना X स्टार या X डबल स्टार के ऊपर. ओके मैम. एनी अदर डाउट? चलो, लेट्स डू अ लास्ट क्वेश्चन फ्रॉम दिस सेट, ताकि ये इजीली समझ आए कि ये क्या है, कैसे निकालना है. देन वील start with section 2.10 tomorrow. Hopefully we'll end the section 2.10 tomorrow, day after tomorrow. So Friday would be left, right, for this week. Friday I'll try to do some questions if possible, क्योंकि नया chapter will start only when we have finished all the questions and everything, right? Then we'll start new chapter from Monday and Tuesday. We'll see. Excuse me, ma'am. हाँ, So most probably we'll be having holidays from tomorrow. from tomorrow you have holidays. Yes, up till 16th. Most probably, it's not Your 100% confirmed. semester break. No, ma'am. Just for COVID crisis, due to the COVID crisis. You just inform me if there are any holidays or such, right? I didn't know of. I'll inform you if it's confirmed. Just now we have received the notice. Okay, you have received the notice. But it's not uploaded on the official website yet, so just waiting for the confirmation. Okay. So once it is confirmed, please tell me, okay? Yes, ma'am, I'll let you know. Yeah. So we'll end this section today, and just do one thing then. I'll list out the questions from sections which we have to do, right? And during that time, if you get time, please try to do those questions, because they will be easy enough to do, so that I don't have to do each and every Ma'am? question. Yeah. मैम हमारे ना नॉन स्पेस वाले भी क्वेश्चंस बचे हुए हैं. हाँ, जो I got to know from sir yesterday कि कौन कौन से questions करने हैं. यस मैम. So that is what I'm saying ना, कि जो questions easy होंगे मैं तुम्हें list out कर दूंगी, उनको तुम करके देख लेना, rest को हम after that कर लेंगे, ताकि uses हो सके break का. If everyone is not busy, but now we'll discuss, okay? यस मैम. Chalo, we have this last question for today. This is, let Z be a proper subspace of an n-dimensional vector space X, and let X naught belongs to X minus Z, right? Show that there is a linear functional f on X such that f of X naught is equals to 1 and is 0 for all X belonging to Z. इसका मतलब क्या है कि हमें एक proper subset given है. Let us just see how it holds. If this is the set X हमारे पास, right?
देन इसका हमें एक प्रॉपर सबसेट गिवन है, दैट मीन्स इस टाइप का कोई सेट है Z, so we have this is Z and this space is X. तो हमें क्या प्रूव करना है, एक x नॉट एलिमेंट है x माइनस z में, दैट मीन्स x नॉट यहाँ पे कहीं बिलोंग कर रहा होगा, राइट. शो दैट देयर इज अ लीनियर फंक्शनल f ऑन x सच दैट f की वैल्यू x नॉट पे 1 है एंड बाकी पूरे z के ऊपर वैल्यू जो है 0 दे रहा है, राइट. सो ये समझ आ गया कि क्वेश्चन है क्या, कि प्रॉपर सबसेट के हर एक पॉइंट के ऊपर वैल्यू 0 है, लेकिन उसके सेट के बाहर हमें एक पॉइंट मिल जाएगा जिस पे उसकी वैल्यू नॉन जीरो आ रही है. नॉन जीरो से स्पेसिफिकली हम 1 है, क्योंकि 1 वैल्यू है तो आर्बिट्री कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करके हर एक वैल्यू आ सकती है. तो एक क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा है कि अगर प्रॉपर सबस्पेस है हमारे पास एक सबसेट का x का z है, तो हमारे पास एक ऐसा लीनियर फंक्शनल होगा जो z के हर एक एलिमेंट पे 0 वैल्यू दे रहा है एंड उसके बाहर एक तो पॉइंट ऐसा मिल जाएगा जिसके ऊपर वो नॉन जीरो वैल्यू दे रहा है, राइट. तो उसके लिए हमने क्या किया, एक सेट डिफाइन किया. लेट m नॉट इज इक्वल्स टू z यूनियन x नॉट बी अ सबस्पेस जनरेटेड बाय z एंड x नॉट, राइट. x नॉट है यहाँ पे शायद, this is x नॉट. So m नॉट क्या है, सबस्पेस जनरेटेड बाय z एंड x नॉट. So then to each x belongings to m naught, we can अगर हर एक x ले रहे हैं m naught का, that can be uniquely expressed as x is equals to z plus alpha times x naught, right? क्योंकि m was subspace generated by z and x naught, so उसके जो basis elements होंगे, so अगर कोई भी element लेंगे हम m naught का, उसको किस टाइप का लिख सकते हैं, an element of z plus some alpha times x naught, right? So हर एक x का एलिमेंट इसी फॉर्म का होगा z प्लस अल्फा x नॉट, जहाँ पे z जो है z का एलिमेंट है, अल्फा स्केलर है, राइट. नाउ व्हाट वी डू इज वी डिफाइन अ मैपिंग फ्रॉम m नॉट टू k. k वाज स्केलर फील्ड, राइट. तो हमने इसे मैपिंग डिफाइन करने का मतलब क्या है, हम एक फंक्शनल डिफाइन कर रहे हैं f फ्रॉम m नॉट टू k बाय f of x is equals to f of z plus alpha x naught, right. x की जस्ट वैल्यू z plus alpha x naught, this is equals to alpha. ये हमने एक फंक्शनल डिफाइन किया, राइट. सो इससे मतलब क्या आ रहा है, f of x नॉट की वैल्यू यहाँ पे क्या आएगी, इस केस में z 0 हो जाएगा जब f of x नॉट की वैल्यू देख रहे हैं. x नॉट को कैसे लिख सकते हैं, 0 प्लस 1 इंटू एक्स नॉट, राइट. तो f की वैल्यू क्या आ जाएगी इस केस में 1 एंड f of z क्या आएगा, z को किस तरीके से लिख सकते हैं, z प्लस 0 टाइम्स एक्स नॉट, सो देयरफॉर f of z क्या आएगा 0. तो हमारे पास f जो है ये फंक्शनल है जो कि वैल्यू दे रहा है 1 एट x नॉट एंड 0 एट और एवरी पॉइंट ऑफ z. नाउ ये जो फंक्शनल था हमने डिफाइन किस पे किया था, m नॉट पे, राइट. सिर्फ m नॉट पे डिफाइन किया था एंड हमें चाहिए किस पे था, देयर इज अ फंक्शनल ऑन x पूरे स्पेस के ऊपर, राइट. तो इस पे हम एक्सटेंशन थ्योरम लगाएंगे एंड एक्सटेंशन थ्योरम क्या कहती है, that we can extend this mapping functional to the entire space x f tilde. अगर हम उसकी extension consider कर रहे हैं f tilde is from x to k, then f would be nothing but f tilde की restriction at m naught. This is the extension जो बोला था हमने extension की definition, एक functional को operator को extend कैसे करते हैं, right. So यहाँ पे हमने क्या किया, extend किया f tilde को, f को over x and उसको नेम दिया है f tilde. So f tilde is a functional from x to k and such that this f tilde की value at m naught is equals to f, right. So clearly f and f tilde is linear. इसको हम always prove कर सकते हैं कि ये f linear है, right. linear prove करने के लिए क्या चाहिए होगा, f of alpha x1 plus f of alpha beta x2 is equals to, हमें prove करना है कि linearity hold कर रही है. So this can easily be proved and you have to prove that f is linear. यहाँ पे prove it है, you can't write it in an exam कि it holds.
this was easy to prove, right? So therefore I didn't do it, but you have to do it. So f is हमारे पास क्या आ गया, linear functional है, and f tilde was nothing but extension of this such that f tilde is linear. So हमारे पास f tilde क्या आ गया, required functional, जो कि x से k के ऊपर वैल्यू दे रहा है. रिस्ट्रिक्शन ऑन m नॉट जो है उसकी f वैल्यू है, एंड f क्या है, फंक्शनल, जो कि z पे 0 वैल्यू दे रहा है एंड x नॉट पे 1 वैल्यू दे रहा है, राइट? सो हमें यही चाहिए था, एक फंक्शनल जो कि x पे डिफाइन हो एंड ये प्रॉपर्टीज होल्ड करता हो, सो दैट वी हैव दैट फंक्शनल. एनी डाउट इन दिस क्वेश्चन? No, ma'am. Chalo, with this section 2.9 is also done. I'll be sending some the list of questions I have that you can do, right? Not difficult questions जो मुझे करवाने हैं, that I'll do. And please confirm कि holiday